الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. محترم صدر مجلس اور اس ادارہ کا مخلص اور محترم بانی اور چیئرمین جناب شمیم اصلاحی صاحب، ان کے رفقائے کرام، اساتذہ کرام اور آس پاس سے تشریف فرما علماء، فضلاء، دانشوران قوم ملت اور اس ادارہ کے ہونہار طلباء، یوں تو سیمینار اور کانفرنس ہمارے سماج میں اور جلسے وغیرہ بہت ہوا کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا ایک خاص موضوع اور عنوان کے تحت خاص علماء کے ذریعے اس کو سننا اور سمجھنا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس مقصد سے اور اس قسم کے کانفرنس بہت کم ہی ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج اس سیمینار میں حاضر ہونے کا اور کچھ بولنے کا موقع عنایت فرمایا، فللہ الحمد والمنہ۔ جیسا کہ آپ حضرات نے سنا کہ جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ طلباء مدارس امت کی امانت اور مستقبل کی قیادت۔ بہت اہم موضوع ہے۔ اس سلسلے میں 20-25 منٹ کچھ آپ لوگوں کو بتانا مقصد ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس موضوع کو اگر دیکھا جائے تو اس میں 3 نقطے ہیں، 3 نقاط ہیں۔ پہلا نقطہ طلباء مدارس ہے، دوسرا امت کی امانت ہے، اور تیسرا مستقبل کی قیادت ہے۔ یہ تینوں جملے سے مل کر یہ عنوان تیار ہے۔ اگر ہم طلباء مدارس کا عام مفہوم لیتے ہیں تو ہر مدرسہ اور اسکول میں پڑھنے والے اس میں شریک ہو جائیں گے، لیکن شاید یہ ارادہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا مقصد ہے، مدارس سے مراد مدارس شرعیہ اسلامیہ، جس میں ہم لوگ دین اور شریعت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں بالخصوص، اور بالعموم پھر دوسرا کچھ علم حاصل کرتے ہیں، وہ طلباء یہاں مراد۔ اس کے بعد دوسرا جو نقطہ ہے وہ امت کی امانت۔ چونکہ ہم لوگ امت کا ہی فرد ہیں اور امت کے افراد ہیں، تو امت کا جز تو ہم لوگ ایسا ہی ہیں، لیکن امت کی امانت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بلکہ صرف امت کی امانت نہیں ہے طلباء، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ طلباء فقط
یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے امانت کو پیش کی آسمانوں پر اور زمین اور پہاڑوں پر، سب نے امانت کو لینے سے انکار کیا اور سب سہم گئے، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ یہ امانت سے مراد کیا ہے؟ جس کو زمین و آسمانوں میں پیش کی گئی تو وہ سب نے انکار کر دیا اور وہ لوگ ڈر گئے، سہم گئے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس امانت سے مراد امانت التکالیف الشرعیہ ہے۔ شرعی تکالیف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جو ہم لوگوں پر فرض کیا ہے، ضروری کیا ہے، امر اور نہیں یعنی حکم فرمائے ہیں یا منع کیے ہیں، جو اطاعت ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، ان چیزوں کو امانت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی نیز اطاعت اور بندگی یہ امانت ہے۔ اللہ نے جب آسمانوں اور زمینوں کو دینا چاہا تو وہ لوگ نہیں لیا، انکار کیا، کیونکہ انہیں ڈر لگا کہ کہیں ہم اس کو صحیح سے انجام نہ دے پائیں، لیکن انسان نے اس کو لے لیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان ظالم ہے اس اعتبار سے کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور یہ جہول ہے، نادان ہے، انجام سے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہ لوگ لے لیا۔ تو اگر اسلام کے حکم و احکام امانت ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس تفسیر میں، ایسی صورت میں پھر اس حکم و احکام کو سیکھنے والے، سمجھنے والے، پڑھنے والے اور پڑھانے والے کون ہیں دنیا میں؟ یہی طلباء ہیں۔ تو اگر یہ طلباء اس امانت کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں، خود عمل کرتے ہیں، لوگوں کو عمل کرنے پر ابھارتے ہیں، تو پھر یہ طلباء تو وہی امانت ہوئی جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اس لیے میں نے کہا کہ طلباء فقط امت کی امانت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھی امانت ہے۔ ابھی اس امانت کو آپ کیسے سمجھیں کہ یہ امت کی امانت ہے؟ طلباء مدارس امت کی امانت ہے کیونکہ امت کی امید ان سے وابستہ ہے۔ کیا بھائی؟ امت کی امید ان سے وابستہ ہے، یعنی آج مسلم امہ یہ چاہتے ہیں طلباء سے کہ یہ فارغ ہو، عالم ہو، ہمارے سماج میں آئے، ہمیں سمجھائے، سکھائے، ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں اس کو دور کرے، جو کمیاں ہیں اس کو بھرپائی کرے، سکھائے، سمجھائے، یہ چاہتے ہیں۔ آج جو طالب علم ہے وہ مستقبل میں امت کا امام ہے، خطیب ہے، داعی ہے، وہ مدرس ہیں، وہ قوم کے رہنما ہیں، تو کیا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ حقیقت میں یہ امت کی امانت ہے؟ ضرور امت کی امانت ہے۔ اگر ہم اور بھی دیکھیں کہ بھئی یہ طلباء امت کی امانت کیسے ہیں، تو اس طرح سے بھی امت کی امانت ہے کہ جو علم طلباء سیکھتے ہیں، یہ علم کوئی اپنی دولت نہیں ہوتی، یہ علم کوئی اپنی دولت نہیں ہوتی، یہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے، کتاب اور سنت کا علم ہے، وہ ہم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر وہ حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ہمارا ذاتی علم نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے بھی یہ امت کی امانت ہے۔ طلباء امت کی امانت ہے اس اعتبار سے بھی کہ امت کے مال
उम्मत की मदद, चाहे वो सदाकात और ज़कावात के शक्ल में हो या आम नफल दान के शक्ल में हो, हम अहले मदरसा और तलबा के लिए उम्मत हमें अता करते हैं। और अब भी अक्सर मदारिस उम्मत के इन पैसों से ही चलता है, या फिर 100% अगर ना भी चले तो 50%, 30%, 40%। तो ये उम्मत की अमानत इस एतबार से हमें जरा गौर करना चाहिए तलबा और उलमा को कि एक इल्म होता है दुनियावी इल्म, असरी उलूम, और इंसान उस असरी उलूम को सीख कर दुनिया का फायदा लेना चाहता है। एक इल्म होता है दुनियावी इल्म, जिसे हम असली इल्म कहते हैं, और उसको सीख कर हम दुनिया का फायदा लेना चाहते हैं, यानी हमें दुनिया का पैसा माल और दौलत चाहिए। और एक होता है दीनी इल्म, जो कि शरीय इल्म है, ये किताब और सुन्नत का इल्म है, और इसको सीख कर हम दुनिया का फायदा लेना चाहते हैं। ये दो नुक्ता है, लेकिन दोनों का हुक्म एक नहीं है, बराबर नहीं है। अगर हम असली इल्म सीखते हैं और सीखने का मकसद ये होता है कि हमें पैसा कमाना है, हम डॉक्टर बनेंगे, बहुत सारे माल और दौलत का मालिक बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे तो ये बनेंगे, हम आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे तो ये माल और दौलत हम कमाएंगे, तो आपके लिए जायज है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब आप दीनी इल्म हासिल करते हैं और आप ये सोच रखते हैं कि इसके जरिए मैं दुनिया का फायदा, फकत माल और दौलत हासिल करूंगा, तो ये आपके लिए कबीरा गुनाह है, ये कबीरतुम मिनल कबाइर है। कैसे? क्योंकि दीनी इल्म को फकत दुनिया तलबी के लिए आप नहीं हासिल कर सकते। मुनासिब समझता हूं कि एक बड़े मुअल्लिफ का एक इबारत आपके सामने रख दूं और उसका तर्जुमा भी कर दूं इस मसले में, क्योंकि कभी कुछ लोगों को लगता होगा कि हम दुनिया की तालीम हासिल करेंगे और उससे पैसा हासिल करेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम दीन की तालीम हासिल करेंगे और उससे कुछ पैसा हासिल करना चाहेंगे तो फिर ये बड़ा मसला है, गुनाह है। क्या बात है? सुनिए, साहिब तस्हीलुल अक़ीदा अल इस्लामिया फरमाते हैं, वकमई यतलुबुल इल्म शरई मिन अजल शहादा वल वज़ीफा, जैसा कि कोई तालिब इल्म, शरई तालिब इल्म सिर्फ शहादा बेमाना सर्टिफिकेट और वजीफा बेमाना नौकरी के लिए इल्म हासिल करता है, वला युरीदु बिज़ालिका कुल्लिही वजहल्लाह, अलबत्ता और इसके जरिए अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी अलबत्ता कतआन हासिल नहीं करना चाहता, कतआन ये इरादा नहीं रखता कि वो अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करें। फकत क्या चाहता है कि हम आलिम बन के, हाफिज बन के सिर्फ दुनिया कमाएं। अगर यही उनका मकसद होता है, फलम यख्तुर बिबालिही इह्तिसाबुल अजर इंदल्लाह ताला, और उसके दिलो दिमाग में सवाब हासिल करने का कोई नीयत नहीं होती, तो इसका हुक्म क्या है? फरमाते हैं, वहादल क़िस्म मुहर्रमुन व कबीरतुम मिन कबाइर दुनूब, इस तरह का इल्म हासिल करना ये हराम है और कबीरा गुनाह है। वह हुआ मिन शिर्किल असगर, और ये शिर्क असगर है। उलमा जानते हैं कि शिर्क असगर ये मिन अकबर दुनूब होते हैं, तौबा के अलावा माफी नहीं। तो अगर उलमा और तलबा आप उम्मत की अमानत हैं इस एतबार से कि जो इल्म आप सीखते हैं इस इल्म का मालिक आप नहीं है,
ये आपकी दौलत नहीं होती और उससे फकत दुनिया कमाएंगे, ये नियत रखते हैं तो आप कबीरा गुनाह के मुर्तकिब होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मन काना युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। जो दुनियावी जिंदगी को चाहता है और उसकी जीनत को चाहता है, हम उसे पूरा पूरा दे देंगे दुनिया में और कोई कमी नहीं करेंगे। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, लेकिन आखिरत में इनके लिए जहन्नम के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तअल्लम इल्मन मिम्मा युब्तगा बिही वजहुल्लाह, जो किसी ने भी कोई ऐसा इल्म सीखा जिस इल्म को वजहुल्लाह, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हासिल की जाती है, लेकिन उस शख्स ने सीखा किस लिए? ला यतअल्लमुहु इल्ला लियुसीबा बिही हरदम मिन दुनिया, फकत इसलिए सीखा कि दुनियावी फायदा हासिल हो जाए, तो लम यजिद उर्फल जन्नह, तो ये जन्नत की खुशबू नहीं मिली। इसलिए तलबाए अजीज और उलमा हजरात, अगर हम किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करते हैं, शरई इल्म हासिल करते हैं, तो इसमें हम फकत दुनिया का इरादा नहीं कर सकते। इसका मकसद फकत दुनिया का माल और दौलत हासिल करना नहीं होता। इसका असली मकसद है वजहुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, जिसे अल्लाह ताला जिसके लिए खैर चाहते हैं उसे दीन की समझ अता करते हैं। इसका मफ़हूम मुखालफा यूँ निकलता है कि जिसके लिए खैर नहीं चाहते हैं उसे दीन की समझ नहीं देते हैं। तो दीन की समझ देना और मिलना ये खैरियत की दलील है, ये अच्छाई की दलील है, और इसका मकसद अल्लाह ताला की रज़ामंदी और खुशनुदी हासिल करना ही असल है। लेकिन उसके ज़िम्न में और अगर दुनियावी फायदे कुछ मिल जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दुनियावी फायदे के बराबर सवाब बढ़ जाता है। ये भी एक हकीकी बात है जिसका पूरा खुलासा मैं आपके सामने शायद नहीं रखूं। मेरे भाई और मोहतरम हजरात, अगर हम ये समझ चुके हैं कि तलबा उम्मत की अमानत है, तो क्या हम समाज के लोग, हम मुआशरा के लोग तलबा को अमानत समझते हैं? किताब और सुन्नत और हकीकत की रोशनी में ये अमानत है जो अभी हम लोगों ने कुछ सुना, लेकिन क्या समाज के लोग इसको अमानत समझते हैं या बोझ समझते हैं? मसला ये, अगर हम जिम्मेदारी तलबा ही पर डाल देते हैं और दूसरे समाज के तमाम अफराद हम इन तलबा को बोझ समझने लग जाएं, तो फिर इस अमानत का कदर कहाँ है? आप कहेंगे कैसे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि मुआशरा में कुछ लोग एक मदरसा कायम करना और कुछ तलबा रख लेना, ये एक आदत बन चुकी है। जब इबादत आदत में बदल जाए, जब इखलास आदत में बदल जाए, तो इसका कोई सवाब नहीं होता। अगर हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान गांव हैं, इसलिए हमारे पास एक मदरसा होना चाहिए जैसा कि एक मस्जिद होना चाहिए, और हम कुछ तलबा रख लेते हैं गोया के तबर्रुकन, और फिर वो क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसका मुस्तकबिल क्या है, क्या करना चाहिए, इसका कोई हमें परवाह नहीं, तो फिर हम इसको बोझ ही ना समझ रहे हैं। बोझ जिस तरह से लोग, समाज के लोग इन तलबा को समझता है, कभी कभी हम अहले मदारिस भी तलबा को बोझ समझने लग जाते हैं। यानी हम मदरसा तो बना लिए, लेकिन उसकी तालीम और तरबियत और उसकी जो जरूरियात हैं, लवाजिमात हैं,
उसको पूरा करने के लिए हम मुखलिस नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में गोया के अहले मदारिस भी हम उसको बोझ समझें। जरा आगे चलिए, ये बोझ ऐसा हो जाता है कुछ वक्त तक कि अब मदरसा चूंकि लोग बनाए हैं, अब इनका तनख्वाह खाना पीना कहाँ से आएगा, तो चलो दो मौलाना ले लेते हैं और साथ में 4 तालिब इल्म ले लेते हैं, एक ऑटो और टोटो ले लेते हैं, ऊपर एक माइक लगा लेते हैं और लक्कड़ छक्कड़ के साथ हम निकल जाते हैं। और यहाँ से मांगना वहां से मांगना, इज्जत और एहतराम का कोई ख्याल नहीं। तो फिर समाज इसको बोझ नहीं समझा तो क्या समझे? समाज इसको बोझ नहीं समझा तो क्या समझे? वो उलमा जिसको हम अभी अमानत कर रहे हैं, जब वो फरागत के बाद किसी मस्जिद का इमाम बनते हैं या खतीब होते हैं, फिर उसकी तनख्वाह का हाल देखिए, मदारिस के उलमा की तनख्वाह का हाल देखिए। आप अपने गांव देहात में आजकल सबसे कमजोर लेबर, सबसे कमजोर मजदूर 400 के नीचे नहीं मिलते। थोड़ा अच्छा हो जाएगा से 500 से 700 मिल जाएगा। उसका माहाना रातिब और तनख्वाह 15,000 बनता है। लेकिन मस्जिद का इमाम तो 4 और 5 हजार में भी है। तो आप इसको बोझ नहीं समझा तो क्या समझे? आप इसको अमानत समझे या हकीकत में बोझ समझे? और वो भी धार पे धार, उधार पे उधार, बाकी पे बाकी। इधर वो रो रहा है, उसके घर वाले रो रहे हैं, उसके अफराद रो रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये अमानत तो है, लेकिन समाज क्या इसको अमानत समझते हैं, ये बड़ा मसला। आजकल समाज के बहुत सारे लोग इसको अमानत नहीं बल्कि बोझ समझने लगे हैं, जो कि बड़ा अलमिया है। अजीज तलबा, इसअलू अनफुसकुम, अपने आप को थोड़ा पूछिए, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी ख्याल रखें, क्या आप डेली हर दिन जो किसी मदरसा में रहते हैं, तो आपके इल्म ने आपका ईमान कितना इजाफा किया? ये सवाल कीजिए अपने आप से। सवाल कीजिए कि आपका इल्म आपके अखलाकी तब्दीली कितना लाया है। इस इल्म की वजह से सवाल कीजिए अपने आप से, सवाल कीजिए कि क्या अगर उम्मत के मसाइल दरपेश होते हैं तो क्या आप उसको हल करने का लायक बने हैं, कर सकते हैं, इसका हल दे सकते हैं? अपने आप से सवाल कीजिए कि आप अपने मदरसा में रहते हुए कितना वक्त गैर जरूरी काम में आप बिता देते हैं। क्या आपके लिए ये मुनासिब है? बकिया पहला नुक्ता मैं यहीं छोड़ता हूँ। खुलासा ये हुआ कि तलबा जरूर अमानत है, लेकिन इस अमानत का कदर होना चाहिए, लोग इसे बोझ समझने लगे। मेरा मौजू का तीसरा नुक्ता है, बल्कि ये दूसरा नुक्ता ही का एक जुज है, कि ये अगर अमानत है तो ये अमानत किसके पास है? तलबा अमानत है तो ये अमानत किसके पास है? ये अमानत मुदर्रिसीन और इंतजामिया के पास है। उनके वालिदैन ने उनके दूसरे बच्चों की तरह इस बच्चे को नहीं समझा, बल्कि चाहा कि ये आलिम बने, ये हाफिज बने, ये खतीब बने, इसलिए उसने मदरसा में छोड़ के गया है। अगर वो मदरसा में छोड़ के गया है तो इस अमानत को हमें दे के गया है, जो कि हम मुदर्रिसीन हैं, इसकी तरबियत करते हैं, और जो कि हम इंतजामिया हैं, जो हम इसका देखभाल करते हैं। अब सवाल ये होता है कि मुदर्रिसीन और इंतजामिया इस अमानत की हिफाजत कितना करते हैं? अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ा नुक्ता है। इसलिए मैंने कहा कि इदारा करना गोया कि एक आदत बन चुकी है, बस इस तरह से किया जाता है तो हम करते हैं, लेकिन इस तरह का हम सोचते नहीं है कि इस अमानत को हम कैसे कैसे उठाएंगे, और इसको हम इसकी आबियारी कैसे करेंगे, इसकी सिंचाई कैसे करेंगे, और इसको तैयार करके हम समाज में कैसे भेजेंगे। इसका चिंता करने वाले कितने लोग, इसको समझने वाले कितने लोग? मेरे भाई, ये अमानत फकत तालीमी हद तक महदूद नहीं है,
बल्कि शख्सियत साजी, किरदार साजी, ईमान साजी वगैरह इसमें शामिल है। आज तमाम इंतजामिया और मुदर्रिसीन को चाहिए कि हम इन बच्चों को बाहैसियत अमानत अगर कबूल किए हैं तो इसकी सही सही तरबियत, तालीम, तरबियत और सब कुछ हमें देना है, इस पर निछावर करना है। सबसे पहले इन बच्चों को अल्लाह ताला के साथ इनका जुड़ाव और लगाव तैयार करना है। इनकी अकीदी और मनहजी तरबियत सबसे पहले होना चाहिए। एक मदरसा का बच्चा फारिग होने के बाद भी अगर वो नमाज छोड़ता है, फराइज को अंजाम नहीं देता है, तो वो कौन सी तरबियत थी और उसमें क्या कमी थी कि एक बच्चा दिनों रात शबो रोज पढ़ता रहा कि अकीमुस्सला, नमाज पढ़ना फर्ज है, ये दिन का बुनियाद है, पढ़ता रहा कि एक इंसान और एक मुस्लिम और दूसरे शख्स के बीच तफरीक करने वाला ये नमाज है, उसके बावजूद भी वो नमाज छोड़ता है फराइज। हम जिम्मेदारान को जब रास्ता में कोई ये कह दे कि फला मदरसा का मुतखर्रिज तो नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या हाल होगा? तो ये हम लोगों ने कैसी अमानत उठाई कि हम सबसे पहला बड़ा नुक्ता फराइज उसी को हम सही नहीं कर सके और उनका अकीदा अल्लाह ताला के साथ जुड़ाव नहीं कर सके। ये अकीदा नहीं बना सका कि नमाज फर्ज है तो फर्ज है। अल्लाह अकबर। ये बच्चा और तलबा का हम नमूना बने। हमें चाहिए कि हम असातिज़ा इकराम और हम इंतजामिया इन बच्चों का हम नमूना बने। ये बहुत आसान है ये बात कहना कि असातिज़ा नमूना है और इंतजामिया नमूना है, लेकिन क्या हम कभी गौर करते हैं कि बच्चा हमें किस तरह का नमूना समझता है? मैं कुछ बात करूं तो गुस्ताखी माफ कीजिएगा, और अगर इस तरह का सेमिनार होता है और उसमें भी अगर हक बात को दबा दिया जाए तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होता। हमारे बच्चों की एक बड़ी तादाद उस्ताद को नमूना देखता है, माली नमूना, इंतजामिया को नमूना समझता है, माली नमूना, कि मुझे भी इस तरह का बड़ा मुदीर और डायरेक्टर और फलाना बनना है, जिसके पास 4 चक्का हो, जिसके पास 4 मंजिला घर हो, जिसके पास करोड़ों का बैलेंस हो। अगर बच्चे आपको ये नमूना समझते हैं तो फिर इल्म का हाल क्या है खुद ही देख लीजिए। एक सफा उर्दू में दरखास्त लिखना नहीं आता। ये जाए कि एक फारिग तलबा जो किताब और सुन्नत को पढ़ेंगे, मस्तर और मरजा और समझेंगे और अपने मसाइल का हल इल्म के रोशनी में निकालेंगे, तो ये अरबी मसादिर और मरजा का पढ़ना समझना ये तो दूर की बात है। एक उर्दू जुमला सही से नहीं होता, वो कहते हैं लिखता, वो कहता है नहीं लिखता, क्योंकि मैं मुदर्रिस हूं, मैं जानता हूं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? इसलिए कौन सा नमूना हम उनको पेश कर रहे हैं ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये समझने की जरूरत नहीं है। आजकल हम लोगों में वही बड़ा आलिम जिसके पास माल दौलत ज्यादा हो, ये कौन सा मिजाज हो गया? आप आज से 25, 30, 50 साल पहले का जमाना याद कीजिए, आप किसको आलिम समझते थे? जो हजरात मेरे उम्र से ज्यादा हैं, आप अपने जमाने में ख्याल कीजिए तो किसको आलिम समझते थे? माल को देख के आलिम समझते थे। अब माल को देख के आलिम की कदर करते थे। लेकिन कैसे मिजाज में तब्दीली आ गई कि लोग आप अब इल्म की वजह से आलिम का कदर नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक माली और दुनिया का ये जीनत और चकाचौंध दुनिया में जो कुछ है, ये सब के बुनियाद पर एक दूसरे का एहतराम और उसको बड़ा आलिम या छोटा आलिम समझना है। ये बड़ा आलमिया है, इसको समझना है। वक्त खत्म होने को है और मौजू को पूरा मैं इहाता नहीं कर सका। आखिरी बात बहुत थी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे जो तलबा हैं, तलबा मदारिस हैं, इनकी तरबियत में एक अहम तरबियत ये होनी चाहिए कि हमारे ये तलबा मुआशरा और मुआशरा के हालात को समझे।
ये लोगों से सही सही बात कर सके, एक दूसरे को समझा सके, मुआशरा की परेशानियों को समझ सके, मुल्क की हालात को समझ सके, जमाना के तकाजे को समझ सके और फिर निडर होकर इन चीजों पर बात कर सके, इनका हल कर सके, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। एक नुक्ता मेरे जहन में बहुत बार आया है, अभी बोलना नहीं हुआ किसी मजलिस में। आज एक डॉक्टर बनता है तो सीधा वो जाके इलाज शुरू नहीं करता मेरे भाई, वो किसी एक सीनियर डॉक्टर के मातहत में ही प्रैक्टिस करता है। एक वकील बनता है तो डायरेक्ट वो किसी कोर्ट में जाके वकालती नहीं कर सकता, यहां तक कि एक सीनियर वकील के मातहत में कुछ दिन वो काम करे। एक आईएएस आईपीएस के किसी भी एग्जाम में पास कर जाता है तो डायरेक्ट मनसब नहीं दिया जाता, यहां तक कि उसको किसी आईएएस आईपीएस का नायब बना के ना रखा जा सकता। लेकिन हमारे तलबाए मदारिस फरागत से पहले ही है सब काम शुरू कर देते। किसी उलमा और किसी सदर मुदर्रिस या किसी की रहनुमाई नहीं लेना चाहते, उसके मातहत में नहीं लेना चाहते, फतवा फराइज ऐसा देते हैं धड़ल्ले से कि आप जो है हैरान रह जाएंगे। और आजकल सोशल मीडिया मिला है, हाथ को जो है घुमाते रहते हैं और फतवा वगैरह पेश करते रहते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं। अमानत तो हमारे बच्चे हैं, हम उसको कितना अमानत समझ रहे हैं और कितनी अमानत से हम उसकी तरबियत कर रहे हैं, ये है हमारे पास सबसे बड़ा नुकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर हमारे अंदर कुछ सोच और समझ की बेदारी आ जाए और समझने का मात्रा और दायरा वसी हो जाए और फिर हम इस पर धीरे धीरे ही सही अमल करने लगें, तो ये इस तरह के प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को हकीकत में तलबाए मदारिस को अमानत समझने और उस अमानत की कमा हक़्क़ा हो आबियारी करने की तौफीक अता करें। अगर मेरी बातों से हमारे असातिज़ा किराम और बड़ों को कुछ तकलीफ हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने हद तक इन बातों को इस तरह समझता हूँ जैसा कि मैंने आपके सामने पेश किया। इन सबको दोबारा समझने और फिर मुराजा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबों को सही समझ अता करे और हकीकत में उम्मत के लिए कुछ खिदमत करने की तौफीक अता करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फ़ी इल्मिकुम व अमलिकुम व तक़ब्बल जुहूदकुम। नहायत ही अहम और फ़िक्र अंगेज़ मौज़ू पर तलबाए मदारिस उम्मत की अमानत और मुस्तक़बिल की क़ियादत पर बेहतरीन अंदाज़ में शेख़ मोहतरम हमारे सामने इंतहाई अहम बातें पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला हम सब को शेख़ की कही हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।